Hello and welcome to this weekly webinar series. Today we have Shri Ishtadev Sankrityayan, who's a linguist, author, and journalist, who will deliver a lecture on the topic Yoga for Wellness and Social Harmony. I heartily welcome you, sir. We also have Director of National Prajit Desai National Institute of Yoga, Dr. Ivy Bhaskar Reddy sir with us. I welcome you, sir. Thank you. We also have Communication and Documentation Officer of FPNI Muhammad Taqib Alim sir with us. I welcome you, sir. Thank you, Dr. Vandana. Now, without any further delay, let us start the program with prayer. Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karvavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai Om Shanti Shanti Shanti. Now, I would like to request Communication Documentation Officer of MPNY, Muhammad Taqib Alim sir, to deliver welcome address. Sir. Thank you, Dr. Vandana. Good evening, everyone. It's my pleasure to welcome you all, to invite you all in the weekly series of webinars, wherein Morarji Desai National Institute of Yoga and Ministry of Ayush, Government of India, organizes lecture on every Friday by inviting eminent experts of yoga, media, modern medicine, food and nutrition, allied sciences. और इस हमारे फ्राइडे वेबिनार की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि हम योग के ही एक्सपर्ट्स को इनवाइट नहीं करते हैं, बल्कि वी इनवाइट एक्सपर्ट्स फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स, डाइवर्स फील्ड्स. फ्राइडे वेबिनार की खूबसूरती अपने आप इससे बढ़ जाती है. टुडे वी हैव विद अस रिस्पेक्टेड श्री ईष्टदेव संत क्रियान जी, who is a well-known senior journalist, poet, writer, linguist, and researcher. And the sir will deliberate upon the topic Yoga for Wellness and Social Harmony. Sir, on behalf of Morarji Desai National Institute of Yoga and my own behalf, it's my privilege to welcome you, sir, in our Friday webinar, which is hugely popular in social media platforms. I also extend my warm welcome to Dr. Ivy Bhaskar Reddy sir, Director Morarji Desai Institute of Yoga, Ministry of Ayush. We have been regularly conducting Friday webinars since October 2020 because of sincere vision, inspiration, and dedication of Director sir. I also welcome all the staff, the student of the institute, and social media friends. Thank you. Thank you so much, sir. Now, I would like to request Director sir to deliver introductory remarks. Sir. Om Shanta Shanta Shanti. Today's esteemed speaker, Shri Ishtadev Sankrityayan ji, my colleagues in the institute, Shri Tayabalam ji, Dr. Vandana, faculty members, student friends, and yoga enthusiasts. My pranams to you all and hearty welcome to you for this Friday webinar. At the outset, it's great pleasure to speak a few words about our esteemed speaker and well-known senior journalist, Shri Ishtadev ji. He's a well-known senior journalist, writer, linguist, and researcher. Currently, he is working with IIT Roorkee as a project associate. He has worked in the very popular daily Dainik Jagran, Amar Ujala, Jagran Sakhi, and Harmony.
So harmony in all walks of life. It begins with within the microcosm, the cell, and the tissue to the organs to the systems to the physical body and the vital body and the psychic body. Like this, it goes on to the universal consciousness. Therefore, the harmony is the part of our healthy living principles. So, yoga is the one of the best way. We all know that. So, our today's speaker will definitely throw a light on how yoga brings harmony within and harmony with mind, body, harmony with man and nature. He is bringing out. So you all know that the Sanskrit yoga comes from the Sanskrit root yuj, that means unite or to join, and many other meanings are there. So union or unity is the main aspect. It's bringing the unity and synergy and integrate all aspects of life, as I mentioned. Patanjali mentioned about yoga chitta vritti nirodha. So it simply doesn't mean that negation, nor it means suppression. Sarupeva sthanam, what Patanjali says. Therefore, Ashtanga Yoga emphasizes on Ashuddhikshaye, Jnana Dipti and Viveka Khyati. Therefore, Chitta Vritti Nirodha is the means to achieve all these things. Therefore, I do agree that you all do agree that our today's speaker, how this yoga Patanjali, it's not only the suppression of our thoughts or emotions, how it streamline and take to the Jnana Vidya and Viveka Khyati. So most importantly, today yoga is bringing use as a tool. It's an soft cover of India for our honorable prime ministers promoting it as a for the world peace and harmony. So once we talk about the social harmony, we have to bring the harmony within, and also harmony in the family, harmony in that workplace, harmony in the society, harmony in the every walks of life. Yoga with its basic principles and practices emphasize on these things. I do hope today's our esteemed speaker will throw a light. Thank you very much, sir, and for accepting our invitation in a very short notice. And with these few words, for your information, as said by our communication and documentation officer, Sri Tayabalamji, we have started this webinar around 6 months back, every Friday 6 to 7. It's a very popular event, and thousands of people join, or at least after some time they watch through our social media, YouTube and Facebook and other social media platform. And definitely your thoughts today, whatever you're going to express or share with us, will be very inspiring to yoga enthusiasts, my faculty and students. So once again, I welcome you, Mr. Dev, and I request you to address or deliver your lecture on the topic yoga for well-being and social harmony. Mr. Dev. मैं बोलूं? वंदना जी, जी सर, आप ऑडिबल जी। मैं बोलूं ना? हेलो जी, आप शुरू करें सर, आप ऑडिबल हैं। ठीक। आदरणीय डायरेक्टर साहब, आदरणीय भाई तैयब जी और बहन वंदना जी, और जो भी साथी हमारे इस आयोजन से जुड़े हुए श्रोता या वक्ता के तौर पर जो लोग संबद्ध हैं, आयोजकों में जो लोग संबद्ध हैं, मैं आप सभी लोगों को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने मुझे अवसर दिया और इस विषय पर हम लोग बात करने के लिए यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। कोविड के इस दौर में भौतिक रूप से मिलना तो संभव हो नहीं पा रहा है लोगों का, तो ऐसे ही हम लोग मिल रहे हैं, ऐसे ही हम लोग सारी चीजें कर रहे हैं। यह भी योग का एक प्रकार है, क्योंकि योग का कुछ और
अन्यथा अर्थ नहीं है। कुल मिलाकर इसका अगर एक शब्द में लिया जाए तो वह है जुड़ना। योग का शाब्दिक अर्थ ही है जोड़, टोटल, या दूसरा शब्द ले आए तो कहिए कि यूनियन, संबद्ध होना, एक दूसरे से संबद्ध होना। अब यह एक क्या है, दूसरा क्या है, इसके और कैसे कोई दूसरा नहीं है, सब एक ही है। इस दिशा में आगे बढ़ने से पहले हमें योग की मूलभूत अवधारणा की ओर देखना होगा। और विषय हमारा जो है कि सामाजिक समरसता योग के ही माध्यम से संभव है, सामाजिक सौहार्द योग के ही माध्यम से संभव है। वह कैसे संभव है, इस विषय को हम इसके जरिए देखते हैं। इसके पहले कि हम योग पर आए, हम पहले सामाजिक समरसता पर ही बात करें। यह देखिए, यह देखने की बात है, समझने की बात है कि समाज में समरसता जो है, समाज में जो सौहार्द है, वह क्यों टूटता है। मूलभूत कारण होता है अभाव। यह अभाव कभी संसाधनों का होता है, कभी सड़कों पर लोगों के आने जाने के लिए पूरी व्यवस्था है, लेकिन उसी में कहीं कोई एक आदमी अपनी जल्दबाजी के चलते व्यवस्था तोड़ देता है, नियम तोड़ देता है। जब एक आदमी नियम तोड़ देता है तो उसके पीछे दो और लोग नियम तोड़ते हैं, और धीरे धीरे यह नियम तोड़ना एक ऐसी स्थिति, एक काओटिक स्थिति उत्पन्न कर देता है कि पूरा शहर जाम हो जाता है। ये चाहे दिल्ली हो या कोई दूसरा शहर, ये हर जगह यही स्थिति, जाम हो जाता है। अब इसमें कारण क्या था? कुछ नहीं, केवल एक आदमी का अधैर्य। यह अधैर्य क्यों आया? क्योंकि उसके भीतर धैर्य नाम की चीज नहीं, वह यह नहीं समझ पा रहा है, उसके अंदर यह ठीक ठीक समझ नहीं है कि अगर वह 5 मिनट इंतजार कर लेगा, 5 मिनट अगर वह रुक गया तो अपने आप सारी सड़क खाली हो जाएगी, आगे के लोग निकल जाएंगे तो उसको भी जाने की जगह मिल जाएगी। लेकिन नहीं, हमें उसी में जाना है, हमें उसी में धंसना, हमें अनावश्यक रूप से जबरदस्ती उसे हासिल करना, जो हम हासिल करने के पात्र नहीं है, जो हासिल करने की हमारी एलिजिबिलिटी नहीं है। यही स्थिति चारों तरफ है। न तो अन्न की कमी है, न धन की कमी है, न संसाधनों की कमी है। कमी है तो उसके ठीक ठीक बंटवारे की कमी है, कमी है तो धीरज की कमी। यह जो कमी है इसे योग पूरा करता है। योग हमें यह सिखाता है कि जो आपके पास है आप उसी में बहुत अच्छी तरह जी सकते हैं। और योग हमें यह सिखाता है कि सब कुछ आप मत बटोरिए, समाज को दी। यह कैसे सिखाता है? अच्छा, जब हम ये बात मानने लग जाते हैं तो सामाजिक समरसता अपने आप, सारी कट्टरता, सारा अहंकार, सारी निर्ममता, ये जो कुछ भी आता है वह केवल इसलिए आता है क्योंकि हमारे जीवन में योग का अभाव, हमारे जीवन में परस्पर प्रेम का अभाव, एक दूसरे के प्रति सौहार्द का अभाव। और ये अभाव सिर्फ एक कारण से है कि योग का अभाव। अब ये मैं बार बार योग की बात कर रहा हूं, तो क्यों कह रहा हूं? मुझे बड़ी अच्छी बात लगी कि आप लोगों ने ये कहा कि हम ऐसे लोगों को आमंत्रित करते हैं जो योग के प्रैक्टिशनर्स नहीं, हम योग से मतलब योग से बाहर के डोमेन के लोगों को बुलाते हैं। मैं संयोग से दोनों डोमेन में हूँ। योग योग के डोमेन में मैं इसलिए हूँ क्योंकि बड़े लंबे समय से योग का अभ्यास करता आ रहा हूँ, और योग के क्रमशः 4 विद्यालयों से जुड़ा रहा बतौर छात्र। और नहीं इसलिए हूं क्योंकि मैंने कभी योग की दुनिया से मैं नहीं इसलिए हूं क्योंकि मैंने कभी इसका व्यावसायिक उपयोग नहीं, मैं केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही मैं इसका उपयोग करता। अभी डायरेक्टर साहब जब इसकी बात कर रहे थे तो आपने पतंजल की योग सूत्र की बात, और योग सूत्र जो योग की सबसे पहली अवधारणा देता है, जो सबसे पहली व्याख्या देता है, इसके लिए जो शब्द देता है वह योगश्चित्त वृत्ति निरोध। अब यह चित्त वृत्ति का निरोध क्या है? ये नॉट निगेशन ऑफ माइंड,
नहीं, निरोध का मतलब निगेशन नहीं, निरोध का मतलब है नियंत्रण। और नियंत्रण कोई ऊपर से थोपा जाने वाली चीज नहीं, नियंत्रण कोई स्थापित किए जाने वाला चीज नहीं है, नियंत्रण आपके भीतर से उपजी हुई चीज। जैसे हम जिस समाज में समरसता की बात कर रहे हैं, उस समाज की भी हमारी मतलब पूरब की और पश्चिम की अवधारणा में एक बुनियादी अंतर है। पश्चिम समाज की जो परिभाषा देता है वो सेट ऑफ पीपल के तौर पर देता है कि जैसे कहीं इधर से आए कहीं उधर से आए, सब लोग जुड़ गए और वो ये एक मशीन के पुर्जे की तरह लोग जुड़ गए और वो समाज बन गया। नहीं, ऐसा नहीं। हमारी जो भारतीय अवधारणा है वह है सम धन अज। सम्यक रूपेण जो जन्मा है, अपने भीतर से जो पैदा हुआ है, वो समाज है। समाज ऐसा नहीं है कि कहीं कहीं से इधर उधर से लोग आकर के बनाते चले गए और समाज बनता चला गया ना। समाज एक जगह उपजे हुए माने एक अपने आप से उपजा हुआ, एक प्राकृतिक रूप से उपजा हुआ, सम्यक रूप से उपजा हुआ एक इकाई है। और इस इकाई में सम्यक रूप से सारी अवधारणाएं हैं हर चीज की, इसकी अपनी मान्यताएं हैं, इसके अपने मूल्य हैं, इसकी अपनी सोच है, अपने सोचने की अपनी इसकी एक पूरी प्रक्रिया है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को कौन और कैसे एक ढर्रे पर लाया जा सकता है, कैसे इस हिसाब में लाया जा सकता है कि इसमें आपस में टकराव न। हितों का टकराव, अगर ये हितों का टकराव नहीं होगा तो सामाजिक समरसता या सामाजिक सौहार्द के टूटने जैसी स्थिति नहीं है। तो ये क्यों नहीं ये सौहार्द क्यों नहीं टूटेगा, अगर सामाजिक सामाजिक समरसता क्यों नहीं टूटेगी अगर हमारे जीवन में योग होगा। तो योग कैसे, योग क्या चीज है, इस चीज को एक बार आइए देखते हैं। आजकल हम लोग देखते हैं कि बाजार में बहुत सारी चीजें दिखाई देती है, योगा एंड प्राणायामा। अब ये योगा एंड प्राणायामा का ऐसा लग रहा है होता है जैसे योग कुछ और है, प्राणायाम कुछ और है। योगा एंड मेडिटेशन नहीं भाई, योगा एंड मेडिटेशन अलग अलग चीजें नहीं है। मेडिटेशन योग का ही अंग है। जब पतंजलि इसकी व्याख्या करते हैं तो योग को अष्टांग योग कहा गया है। ये 8 अंग योग के क्या क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इसमें से जो पहले 5 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये जो पहले 5 अंग हैं, इन्हें योग का बहिरंग कहते हैं, बाहरी अंग। और इसके बाद के जो दूसरे अंग हैं, मतलब धारणा, ध्यान और समाधि, ये योग का अंतरंग है। इसी को कुछ नए तरीके से बांट दिया गया है, हठ योग और राजयोग में। बात वही है, जो बहिरंग है उसी को हठ योग कुछ लोग मान लेते हैं, और जो अंतरंग है उससे कुछ लोग राजयोग मान लेते हैं। अब आइए हम ये देखते हैं कि यम नियम क्या चीज है। केवल अगर यम नियम पर ही हम कायदे से बात कर लें और कायदे से अगर हम इसको समझ लें तो समाज में समरसता की सारी समस्या हल हो जाती। क्योंकि जो सबसे बड़ी समस्या मतलब जो कहा जाता है कि असंतोष या जो स्वार्थों के टकराव की जो समस्या है वो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि लोग देना नहीं चाहते, लोग सब कुछ अपने आप तक सीमित कर लेना चाहते। और इस समस्या का समाधान अगर कहीं है तो यम और नियम में। यम क्या है? हमारी एक तरह से सामाजिक सौहार्द कायम रखने की, सामाजिक नैतिकता का सबसे बड़ा माध्यम है यम। अब यम में क्या क्या चीजें आती हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय,
ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो अगर ये चीजें हैं, अहिंसा मतलब केवल एक तरह का नहीं कि हम मांसाहार नहीं करेंगे, हम किसी को मारेंगे नहीं, नहीं, ये इससे अभिप्राय नहीं है। बस ये है कि हम शब्दों से, विचारों से, कर्मों से किसी को अकारण हानि नहीं पहुंचाएंगे। हम अपने कारण किसी को बेवजह हानि नहीं होने दें। सत्य, हम फालतू में झूठ नहीं बोले। ठीक है कि कोई कहीं बहुत आवश्यक हो गया तो ये दुनिया है, इसमें लोग बोल ही दूसरे दूसरे रूपों में कर रहे हैं। बहुत सारे लोग भ्रष्टाचार के रूप में कर रहे हैं। ये सारी चीजें योग की मूलभूत अवधारणा के विरुद्ध है। ब्रह्मचर्य का अभिप्राय है कि चेतना को ब्रह्म के ज्ञान में स्थिर, चेतना को सहस्रार में तो स्थिर होना बड़ा कठिन बात है, लेकिन यह है कि कम से कम आज्ञा चक्र में स्थिर रखना, उसे बहुत निम्नतर स्थिति में, इंद्रिय सुखों में, वो छोटी मोटी चीजों में भ्रमित न होने देना, ये आपका ब्रह्मचर्य है। और अपरिग्रह का मतलब है आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना। जो अनावश्यक संग्रह किया जाता है, अब वो चाहे स्टॉक के तौर पर हो, जिसको जमाखोरी कहा जाता है, और चाहे निजी धन के तौर पर हो, जो इनकम टैक्स वाले छापेमारी करके ले जाते हैं, वो न आप सोने पाते हैं। जो लोग यह काम करते हैं तो न तो वो खुद सोने पाते हैं और न दूसरों को सोने देते हैं, न दूसरों को चैन से रहने देते हैं। दूसरों को इसलिए चैन से नहीं रहने देते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी का मारा हुआ धन है। किसी न किसी तरीके से वह किसी दूसरे का हिस्सा हड़पा गया है। ये कैसे हड़पा गया है? कभी किसी चीज का नियत से अधिक दाम लेकर हड़पा गया है, कहीं किसी सेवा पर अनावश्यक रूप से वो रिश्वत लेकर हड़पा गया है, कहीं किसी चीज में कमीशन खोरी करके हड़पा गया है, या कहीं किसी की मजदूरी में कटौती करके हड़पा गया है। यही तो है। अगर यह नहीं है तो फिर उसे हड़पने, ऐसा नहीं है तो फिर अनावश्यक रूप से किसी के पास इतना अधिक धन आया कहां से है? ये अगर किसी के अनावश्यक रूप से बहुत अधिक धन आया है, अगर किसी के पास भी बहुत अधिक चीजें जुटी हुई हैं, तो वो क्यों जुटी हुई? ये जुटना ही सारी समस्याओं का मूलभूत कारण है। क्योंकि वो जुटा है तो बहुत सारे लोगों का हिस्सा मार कर दिया। अगर यह हिस्सा न मारा गया होता, अगर अब से हम ये संकल्प लें कि नहीं, हम किसी का हिस्सा नहीं मारेंगे, जिसका जो हिस्सा है वो हम उसे दे देंगे, तो समाज अपने आप स्थिर हो जाएगा, समाज में अपने आप सौहार्द आ जाएगा, ये स्थिति नहीं बनी रह जाएगी। तो एक तो ये बात आती, और यम के बाद फिर आते हैं नियम। ये जो नियम है, ये जो यम है, ये अपने मूल रूप में सामाजिक सौहार्द की ही चीज है, ये सामाजिक नैतिकता की ही चीज है। अगर हम ये सारी चीजें, अगर हम इन 5 चीजों का पालन करें, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, तो समाज में समरसता अपने आप आ जाएगी, समाज में सौहार्द अपने आप आ जाएगा। उसके लिए कहीं और से, कहीं बाहरी कारण कोई थोपने की आवश्यकता नहीं। अब जो व्यक्तिगत नैतिकता की बात आती है, नियम, उसमें कहा गया शौच, सबसे पहली चीज है शौच, शरीर और मन की शुद्धि। उसके बाद आता है संतोष। अगर शरीर और मन शुद्ध नहीं होगा तो संतोष भी नहीं होगा। संतोष के लिए जरूरी है कि शरीर और मन आपके शुद्ध हो, और जब मन शुद्ध होगा तो आचरण अपने आप शुद्ध हो जाएगा। तो संतोष इसके लिए एक जरूरी चीज है। और फिर तप, अपने आप से अनुशासित रहना। तप का कोई ये अर्थ नहीं है कि आप चले जाइए जंगल में और वहां धुनी रमाइए या पेड़ की एक डाली पकड़ के लटके रहिए। ये हो सकता है यह भी तप हो, मैं उससे इनकार नहीं करता, कुछ अलग अलग लोग, लेकिन जो समाज में जो व्यक्ति है उसके लिए उसका अनुशासन ही, उसकी अपनी व्यक्तिगत दिनचर्या से लेकर उसकी
व्यावसायिक दिनचर्या तक में जो अनुशासन है वही उसका तप है। ये अनुशासन केवल समयबद्धता तक सीमित बात नहीं है। अनुशासन वाणी का भी होना चाहिए, अनुशासन कर्म का भी होना चाहिए, अनुशासन स्वाध्याय का भी होना चाहिए। ये सारी चीजें होनी चाहिए। और फिर स्वाध्याय, इसी का हिस्सा है एक स्वाध्याय नियम का, सेल्फ स्टडी, आत्मचिंतन करना। इसी के जरिए आदमी मनुष्य जो है वो चिंतन करता है और यही चिंतन विकास की ओर ले जाता है। यही चिंतन आत्मा के विकास का कारण बनता है और यही चिंतन आपको अपने को खोजने का, अपने को समझने का, अपने खुद से खुद का साक्षात्कार करने का अवसर देता है। यह स्वाध्याय ही आपको अपने को जानने का सबसे बड़ा माध्यम बनता है। जब तक हम स्वयं को नहीं जान लेते तब तक ऐसी ही चीजों में, जिन्हें हम अंधकार कहते हैं या अज्ञान कहते हैं, इनमें हम भटके रहते हैं। तो स्वाध्याय हमें इसके लिए प्रवृत्त करता है। अब इसका पांचवा अंग है नियम का ईश्वर प्रणिधान, कि जो भी आप कर रहे हैं, जो भी हम भोग रहे हैं, हम कुछ है ही नहीं। जो दाता है वही है, जो त्राता है वही है। ईश्वर जो देने वाला है वही है, जो लेने वाला है वही है, जो करने वाला वही है, जो करने वाला है वही है, जो पाने वाला है वही, भोगने वाला है वही है। तो जो कुछ भी हम कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, वह सब हम ईश्वर को समर्पित करते जा। यह ईश्वर पता नहीं वो आसमान में बैठा हुआ कोई है कि नहीं है, यह कोई नहीं जानता है। लेकिन हमारे आसपास जो समाज है वही ईश्वर, वह ईश्वर का ही एक रूप है। यह समझने में कहीं कोई भेद नहीं। कमोबेश हर धर्म, हर संप्रदाय यही बार बार कहता है कि जो करो उसमें अपने पूरे समाज की हिस्सेदारी, जो भी प्राप्त करो वह समाज, उसका एक हिस्सा समाज को दो, क्योंकि तुमने जो पाया है वो समाज से ही पाया है और अंततः यह समाज का ही होना है। तो उससे पहले से ही समाज का मानकर समाज को समर्पित करते थे। यही ईश्वर प्रणिधान। वो कहते हैं ये अगर 5 चीजें आ जाती हैं तो अपने आप बहुत सारी चीजें और बहुत सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। बहुत सारी समस्याओं का समाधान केवल यम और नियम में है। बहुत बार मैं ये देखता हूं कि लोग कहते हैं कि मैंने बड़ा योगा में मैंने बहुत प्रैक्टिस किया लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। कहाँ से लाभ हुआ? लाभ होने के लिए जरूरी है कि आप उसे उसकी संपूर्णता में समझें, आप उसे उसकी संपूर्णता में माने। उसकी जो प्रैक्टिस है, जो अभ्यास है उसका, वो आप उसकी संपूर्णता में करें। अगर आप इन टोटलिटी नहीं करते हैं, हम शरीर में अगर एक जगह दर्द रहेगा तो दूसरे जगह कैसे आराम हो सकता है? क्योंकि शरीर पूरा जुड़ा हुआ। ऐसे योग भी, शरीर कोई खंडित चीज नहीं है। जैसे आजकल एलोपैथी के डॉक्टरों ने शरीर को बांट लिया है, ये गमों ने बांट लिया है मुझको, ऐसे जैसे मैं कोई लूटा हुआ खजाना हूँ ना, कि पैर का डॉक्टर अलग हो गया है, हाथ का डॉक्टर अलग हो गया है, वो हार्ट का डॉक्टर अलग हो गया है, आंख का नाक का डॉक्टर। विशेषज्ञता तक तो ठीक है, लेकिन जिस तरह से बंटवारा किया गया है, योग बांट कर नहीं देखता है। योग पूरे शरीर को एक हिस्से के तौर पर, पूरे शरीर को एक इकाई के तौर पर देखता है। और यह जो एक इकाई है, यह वो उसको उसी में स्थैर्य ले आने की बात करता है। यह पूरी इकाई को एकात्म करके देखता है। और यह जो एकात्मता है, यह जो अद्वैत है शरीर का, इसी की साधना के लिए, इस अद्वैत की प्राप्ति के लिए आसन, शरीर, आसन का कोई और अन्यथा अर्थ नहीं है। आसन का अर्थ है बैठना। लेकिन यह बैठना कैसे? ऐसे नहीं कि चारों तरफ हिल रहे हैं, चैन से नहीं बैठ पा रहे हैं, शरीर कभी इधर हो रहा है कभी उधर हो रहा है, आप अभ्यास ही नहीं कर पा रहे हैं। और वो होगा, उसमें चंचलता बनी रहेगी जब तक कि उसमें वह पूरी तरह
मतलब पीड़ा से रहित नहीं होगा। जब भी उसमें जरा सी भी कहीं कोई पीड़ा होगी तो शरीर में समस्या होगी। अगर उंगली में दर्द होगा तो एक अगर छोटी सी उंगली में भी पीड़ा होगी तो पूरे शरीर को परेशान करेगा। ये पीड़ा न हो इसी के लिए आसन, यह कष्ट न हो, किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो इसी के लिए आसन। ये कष्ट न होने देने के लिए ये जितने भी प्रकार के आसन बनाए गए हैं वो इसीलिए है कि शरीर में फिटनेस बना रहे। ये फिट, जिसको आजकल हम फिटनेस कहते हैं, ये फिटनेस और कुछ नहीं है, बस ये है कि हर तरह से आपके शरीर में कहीं ऊर्जा का कोई अंश जो है जा करके कहीं रुक जाता है, कहीं कोई बाधा आ जाती है, कहीं ब्लड के प्रवाह में कोई बाधा आ जाती है, वही हमें इस तरह की दिक्कतें पैदा करता है। वो दिक्कतें न पैदा हो इसके लिए सारे आसन कराए जाते हैं। ये आसन जब होता है तो शरीर में अपने आप एक तरह की टूनिंग आ जाती है, वो एक तरह का लचीलापन आ जाता है। ये जो लचीलापन है ये आपको तमाम तरह की पीड़ा, तमाम तरह के कष्टों से मुक्ति दिलाए रहता है। और प्राणायाम जो इसके बाद का चरण है, प्राणायाम, यह पूरे शरीर की एकात्मता का आपको अगर आभास चाहिए, इसका अगर आपको अनुभव चाहिए तो उसका सर्वोत्तम माध्यम है प्राणायाम। चाहे अब प्राणायाम के हजारों तरीके हैं, कई कई स्कूल्स में कई कई तरीके बताए जाते हैं, लेकिन इसका कुल मिलाकर जो अभिप्राय है, और हठयोग का भी जो अभिप्राय है, हठयोग में सबसे ज्यादा जो जोर दिया जाता है बाद में आकर के, वो प्राणायाम ही होता है। और हठयोग का अर्थ, हठ का अर्थ कोई यहाँ जिद नहीं है। हठयोग का अर्थ ही जो अभिप्राय ही बताया जाता है वो हठियो योग, हठ योग है। ह अर्थात वायु नाड़ी, जिसको चंद्र नाड़ी कहते हैं या इरा कहते हैं, और थ अर्थात दाहिनी नाड़ी, जिसको सूर्य नाड़ी या पिंगला बोलते हैं। तो इड़ा और पिंगला का जो योग है, दोनों सांसों का, दाई और बाई सांस का जो योग है, इनको मतलब इनको सम रखना, इनको सही तरीके से इनका चलना, यही हठ योग है। ये प्राणायाम के माध्यम से इस उपलब्धि को अर्जित किया जाता है, यह स्थिति पाई जाती है। और प्राणायाम तक आने के लिए आपको यम, नियम और आसन, इन तीनों का सहारा लेना होता है। अगर यम आपके जीवन में नहीं है, जो 5 चीजें पहले बताई गई, अहिंसा, सत्य, अस्तेय आदि, तो अगर यम नहीं है तो आप नियम का पालन नहीं कर पाए। नियम का पालन करने के लिए जरूरी है, जो नियम अर्थात जो शौच और शौच, सत्य, स्वाध्याय आदि, जो तप आदि की जो बात की गई, तो यम के बिना नियम का अनुपालन संभव नहीं हो पाता। और इन दोनों के बिना, यम और नियम के बिना आसन का अनुपालन नहीं हो पाता। ये बहुत आसानी से होने वाली बात नहीं है कि बस आपने करना शुरू किया, इधर उधर हाथ पैर फेंकना शुरू किया, इधर उधर मोड़ना दौड़ना शुरू किया और हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको आसन का आपको पूरा पूरा लाभ मिले और आसन आप पूरा पूरा ठीक तरीके से कर सकें, इसके लिए आवश्यक है कि आपकी चित्तवृत्तियां स्थिर हो। आप अनावश्यक धौ-धौ पट-पट बेमतलब की हड़बड़ी में न पड़े, आपके भीतर अनावश्यक अधीरता न हो, और आपकी वृत्तियां इधर उधर भाग न रही। इसके लिए ये जरूरी होता है कि यम नियम का अनुपालन किया जाए। यम नियम का अनुपालन होगा तो आसन सधेगा, और जब आसन सध जाएगा तो प्राणायाम अपने आप से, प्राणायाम के लिए बहुत अधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं हो। और ये प्राणायाम के बाद जो है ये आपका आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार का अभिप्राय होता है इंद्रियों को अंतर्मुखी कर, जो इंद्रियां चित्त को चंचल कर रही हैं, उनको विषयों से हटाकर
एकाग्र करके चित्त के स्वरूप का अनुकरण करने में लगा दिया जाए, यही प्रत्याहार। जो बिल्कुल ठीक ठीक आप अपने को नेचर से जोड़ लें, आप अपने को प्रकृति से जोड़ लें, आप अपने को समाज से जोड़ लें, आप अपने को ईश्वर से जोड़ लें, व्यष्टि को समष्टि से जोड़ लें। नटशेल में कहा जाए कि व्यष्टि को समष्टि से जोड़ लें, और यही प्रत्याहार है। जब व्यष्टि समष्टि से जुड़ जाएगा तो उसका परमेष्टि से जुड़ना अपने आप ही हो जाए। तो ये आपका होता है प्रत्याहार। और प्रत्याहार के बाद बात आती है धारणा की। धारणा प्रत्याहार के बाद की स्थिति है। एक तरह से समझिए कि संकल्प शक्ति आपकी जो है, सामान्य भाषा में कहा जाए तो आपका विल पावर जिसको कहा जाता है, वही धारणा है। मन को जब आप इन चीजों से गुजर कर जो व्यक्ति आएगा, यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार से, उसका मन बहुत अधिक भागेगा। जब नहीं भागेगा, इधर उधर फालतू नहीं दौड़ेगा, निरर्थक कामों में जब वो अपने मन को नहीं ले जाएगा, निरर्थक विषयों में जब उसका मन आसक्त नहीं होगा, तो स्वाभाविक रूप से वह उन कार्यों में अग्रसर होगा, वह उन कार्यों में लगेगा जो कार्य उसे करने चाहिए, जिनके लिए वह इस धरती पर आया है। तो एकाग्रचित्त होकर वह अपने मूलभूत कार्य में लग सकेगा। यह मूलभूत कार्य में लगना ही उसकी मतलब इस मूलभूत कार्य में लगना ही उसका उसके जीवन का लक्ष्य है। जो कहा जाता है कि न चैनम सहसा क्रम्य जरा समधिरोहति स्थिरी भवति मानसम च व्यायामाभिरस्तस्य च। या व्यायामी मनुष्य पर बुढ़ापा सहसा आक्रमण नहीं करता। व्यायामी पुरुष का शरीर, हाड़ मांस सब स्थिर होते हैं। जब सब स्थिर होता है तो उसको बहुत अधिक झंझटों में नहीं पड़ना पड़ता, उसे बहुत अधिक निरर्थक वृत्तियों में नहीं लगना पड़ता है। इसी लिए कहा जाता है कि व्यायामात् लभते स्वास्थ्यम दीर्घायुष्यम बलम सुखम आरोग्यम परमम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधन। व्यायाम से स्वास्थ्य मिलता है, लंबी आयु मिलती है, बल मिलता है, सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन यह सब जो ये व्यायाम है, ये केवल इसलिए नहीं होता है, ये इसलिए होता है कि आप अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। और इस ओर आप तब बढ़ते हैं जब इस व्यायाम को और आगे ले जाते हैं। और ये व्यायाम आगे तभी जाता है जब आप यम और नियम की अवधारणा को ठीक से उसका अनुपालन करते हुए आते हैं। तभी ये व्यायाम का मूलभूत अभिप्राय केवल वही आसन तक और आसन से आगे थोड़ा सा बढ़कर प्राणायाम तक। जब ये फिर उसके आगे बढ़ता है तब ये आता है प्रत्याहार और धारणा पर। धारणा मतलब विल पावर। बार बार कहा जाता है कि आप कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए आपका विल पावर स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। ये विल पावर स्ट्रांग कैसे होता है? इसी तरीके से होता है। विल पावर स्ट्रांग होने का तरीका यही है कि आप अपने मन को अनावश्यक निरर्थक वृत्तियों में न लगाएं। जो निरर्थक वृत्तियों में आदमी लगेगा तो उसका समय नष्ट होगा, उसकी ऊर्जा नष्ट होगा। ऐसे मतलब ऊर्जा, समय, धन, इन सब का अपव्यय होगा। नष्ट होने का अभिप्राय यह है कि इन सब का अपव्यय होगा कि, और जब ये अपव्यय होगा तो फिर वह जो न्यूनतम लागत में अधिकतम लाभ प्राप्त करने की, ये केवल व्यापार का सिद्धांत नहीं है, आपके जीवन का भी सिद्धांत है कि आप न्यूनतम श्रम में, न्यूनतम प्रयत्न में अधिकतम उपलब्धियां हासिल करें। ये तभी संभव है जबकि आप अपने श्रम को, अपने उद्यम को, अपने प्रयत्न को लीक न होने दें।
उसका अपव्यय न होने। बहुत सारी ऊर्जा का हमारे देश में ही नहीं पूरी दुनिया की स्थिति है कि युवाओं की हमारी मतलब युवाओं ही क्यों कहें, सब हर वर्ग की, हर आयु वर्ग के लोगों की, हर समाज के लोगों की बहुत सारी ऊर्जा का अनावश्यक रूप से अपव्यय हो रहा है, लीकेज हो रहा है। लगना कहीं और चाहिए, वो लग कहीं और रहा है। तो ये जो कहीं और लग रहा है, ये समस्या आपकी योग समाप्त कर देता है। इस समस्या का एकमात्र समाधान अगर कोई है तो वह योग है। और धारणा के बाद आती है बात ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान का अभिप्राय कहीं एक जगह स्थिर होना नहीं है। ये एक जगह स्थिर होना, बहुत बार लोग ऐसा समझ लेते हैं कि ध्यान का अभिप्राय एक जगह स्थिर होना है, मन को एक जगह स्थिर करना है। नहीं, वो तो धारणा में ही आ जाता है। एकाग्रचित्त होना धारणा में ही आ जाता है, जिसके लिए बहुत बार लोग त्राटक वगैरह का अभ्यास करते हैं, और भी कई तरह के अभ्यास हैं। तो ये एकाग्रचित्त होना धारणा में ही आ जाता है। मेडिटेशन या ध्यान धारणा से आगे की चीज, मन को निर्विकार कर लेना, निर्विचार कर लेना। जो निर्विचार हो गया वो निर्विकार हो गया। हमारे भीतर बहुत तरह की कुंठाएं रोज जम रही। कोई चीज हमने चाहा और वो हमको नहीं, कहीं वो हमने किसी से कोई अपेक्षा की और वह अपेक्षा पूरी नहीं हुई, क्योंकि हमारा जीवन, हमारा अस्तित्व जो है वो स्वतंत्र नहीं है, यह निर्भर है। वो बहुत सारी चीजों पर निर्भर है, बहुत सारे लोगों पर निर्भर है। हम समाज में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो जब हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो हम एक दूसरे से संबंध रखते हैं, एक दूसरे से अपेक्षाएं करते हैं। कभी वो अपेक्षाएं पूरी होती हैं और कभी पूरी हो जाती हैं तो हम प्रसन्न होते हैं, और जब नहीं पूरी होती हैं तो हमें दुख होता है। ये जो दुख होता है ये हमारे भीतर एक तरह की कुंठा बना देता है, एक तरह की गांठ बना देता है। यह जो गांठ है इसे तोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर यह गांठ बनी रह गई तो फिर यह पूरे चेन को बिगाड़ती। सामाजिक सौहार्द जिसकी बात हमने की है, वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि एक ठोस पदार्थ है और उसको हमने कर ये हमने कर लिया तो पूरा हो गया, वो कर लिया तो पूरा नहीं। सामाजिक सौहार्द एक पूरा चेन है, समाज ही एक पूरा चेन। तो इस चेन में अगर कहीं कोई एक थोड़ा सा टुकड़ा कुछ बिगड़ गया, कहीं एक टुकड़ा थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो फिर वो चीज दिक्कत पैदा करती है। ये जो दिक्कत पैदा होती है, इस दिक्कत को खत्म करने के लिए, इस दिक्कत के निवारण के लिए, इस समस्या के निराकरण के लिए, इसीलिए ध्यान। यह ध्यान जीवन में जितने भी प्रकार की, जहां कहीं से भी जैसी भी कुंठाएं आ रही हैं, उन सबको समाप्त कर देने की व्यवस्था। इसीलिए कहा जाता है योग की क्लासेस जो भी लोग ज्वाइन करते हैं जब भी, और खासकर वो जो योग को परंपरागत योग में, जैसा कि आपके यहाँ भी होता है, मैं एक दो बार आपके आयोजनों में आया, आयोजनों में क्या क्लासेस में, और दूसरी जगहों पर भी ये होता है, जो व्यवस्थित रूप में जो वाकई योग का जहाँ अध्ययन अध्यापन होता है, वहाँ यही अष्टांग योग की ही बात की जाती है। और बार बार यहाँ फिर ध्यान की ओर आने की बात की जाती है। तो ये जो ध्यान है, ये हमें तमाम तरह के विकारों से मुक्त कर देता है। और ये तभी संभव है जब हम ध्यान में गहरे उतरें। अपने आप बहुत सारी चीजें निकलती चली जाती हैं। ये ऐसे समझ लीजिए कि जैसे कंप्यूटर का हार्ड डिस्क है, उसमें बहुत सारी मेमोरी भरी हुई है, बहुत सारी चीजें उसमें भरी हुई है, उसमें बहुत सारा काम का है और बहुत सारा बेकार है। इसके अलावा बहुत सारी उसमें बैक फाइलें हैं, बहुत सारी उसमें क्वारंटाइन फाइलें हैं, बहुत सारी उसमें पता नहीं क्या क्या फाइलें बन जाती हैं। मैं नहीं जानता, शायद तैयब बेहतर बता पाएंगे इस चीज को। जो बेकार की फाइलें होती हैं जिनको उड़ा देना होता है, तो वो जो उड़ा देने वाली फाइलें हैं, ध्यान यही करता है कि उनको उड़ा देता है। उसको उड़ाने के लिए उसको डिलीट का बटन मारने की जरूरत नहीं,
जब आप ध्यान में बैठते हैं तो फाइलें अपने आप निकल जाती हैं। समाज में जो सौहार्द घटने की बात आती है, समाज में जो सौहार्द टूटने की बात आती है, वो क्यों आती है? वो इसीलिए आती है कि कभी किसी ने कुछ किया था, कभी किसी ने कुछ गलत कर दिया, अब हम उसको अपने भीतर दबा कर बैठे। वो जो हमने जो हम दबा कर बैठे हुए हैं वो हमें कुंठित बना रहा है। ये कुंठा केवल व्यक्ति की नहीं होती, केवल व्यक्ति की नहीं होती, यह कुंठा कई बार समष्टि की कुंठा बन जाता है। यह कुंठा कई बार पूरे के पूरे समाज की कुंठा बन जाता है। और जो जब समाज में यह कुंठा बन जाती है तो फिर सौहार्द समाज का ही टूटता है, फिर समाज में सौहार्द नहीं रहता। समाज में सौहार्द रहे इसके लिए जरूरी है कि ध्यान को पूरे समाज की जीवनचर्या का हिस्सा बनाया। क्योंकि अगर एक समाज ये एक समाज के ध्यानी होने से बात पूरी नहीं होती। अगर यह कहिए कि हम समाज के एक हिस्से को ध्यान की ओर प्रवृत्त कर देंगे तो सौहार्द आ जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि एक हिस्सा, मान लेते हैं कि अगर एक ही जगह पर अगर 50 लोग हैं, उस 50 में 10 लोग ध्यान करने लगे तो वो तो ठीक है, वो भूल गए उनको, उनके साथ किसी ने क्या किया। लेकिन जो दूसरे 40 लोग हैं उसमें 10 लोग लगातार अगर यह याद दिलाते रहेंगे कि देखो तुमको हमने हराया, देखो तुम्हारे साथ हमने ये किया, देखो तुम्हारा ये हुआ, तो फिर समरसता बनी नहीं रहती है। समरसता बनी रहे इसके लिए जरूरी है कि वो ये याद दिलाना, और नहीं तो फिर किसी एक दिन उनको उसका जवाब मिलता है। ये जो चीजें हैं, ये जो बातें हैं, ये समझने की। कोई मुंह फुलाकर बैठा रहे कि नहीं ये हमारी परंपरा, कुछ भी किसी की परंपरा के विरुद्ध नहीं। जितनी परंपराएं बनी है, ध्यान योग हमें ये सीख देता है, हमें ये समझ देता है कि जितनी परंपराएं बनी है, एक भी परंपरा भगवान ने बनाकर नहीं, एक भी परंपरा उस परम पिता परमेश्वर ने बनाकर नहीं। जितनी परंपराएं बनी है वो यही बनी, इसी समाज ने बनाई। जैसे जैसे समाज की आवश्यकता हुई, जो चीज समाज को आवश्यक लगा वो उसने किया, जब उसको जैसी आवश्यकता महसूस हुई वो उसने किया। जितने भी संप्रदाय हैं, आप अगर उठाकर देखेंगे तो किसी न किसी महापुरुष के पीछे बने, उनके पहले क्या समाज नहीं जी रहा? ये एक बड़ा गहरा प्रश्न है। तो और जब उन्होंने वो परंपरा बनाई तो अपने पहले की कोई परंपरा तोड़ी है, उसको तोड़ने की जरूरत उनको क्यों पड़ी? क्या वो परंपराएं गलत थी? नहीं, वो परंपराएं भी सही थी, जो उन्होंने बनाई वो परंपरा भी सही। लेकिन धर्म युग का होता है। धर्म एक तो चिरंतन है, लेकिन उसके अलावा एक युग का होता है, एक अवसर का होता है। तो ये जो समझ है, धर्म से मतलब रिलीजन से न लिया जाए। धर्म का अभिप्राय यहाँ वही त्रिधातु वाले धर्म का है, जो जिसको अब बहुत अधिक परिभाषित करने की जरूरत यहाँ समझदार लोगों के बीच नहीं है, सारे लोग जानते हैं। तो वो जो चीज है कि हमारा जो कर्तव्य है, हमारी जो नैतिकता है, वो युग सापेक्ष है। जिस समय की जो आवश्यकता थी वह थी, अब की जो आवश्यकता है वह यह है, और इस हिसाब से हमें यह करना चाहिए। ये बात हमें समझनी चाहिए। जितने अधिक से अधिक लोग योग की ओर प्रवृत्त होंगे, जितने अधिक से अधिक लोग, मतलब हम पूरे समष्टि की बात कर रहे हैं, जितने अधिक से अधिक लोग ध्यान की ओर प्रवृत्त होंगे, पर्टिकुलरली ध्यान, क्योंकि योग एक चीज नहीं है। हम समाज की ओर इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि समाज एक भिन्न अनुभव है, और वो खुद मेरे अपने अनुभव के पीछे, मुझे उस पर बात, मैं ध्यान तक की बात कर सकता हूँ। और ध्यान का अनुभव भी हर व्यक्ति का अपना अलग अनुभव। आप आएंगे, जो करेगा उसके, जिसको जैसा, मतलब जो जैसी प्रैक्टिस करे और जिसको जो अनुभव हो वो उसका निजी अनुभव होता है। लोग उस पर बात करने से मना करते हैं। उसका कारण ये नहीं है कि कोई जान जाएगा, उसका कारण ये है कि हम अपना अनुभव आपको बताएं या आप अपना अनुभव हमें बताएं, उससे हमारा या आपका अनुभव दूसरों के अनुभव से दूसरों का अनुभव प्रभावित नहीं होना चाहिए। वो सबका अपना अपना अनुभव होता है, और अपने अपने अनुभव को ही आप अपने भीतर स्थान दें, उसका ही आप रस लें, ये ज्यादा अच्छी बात है।
क्योंकि वही आपको आपकी प्रकृति से जोड़ता है। वही जब आप अपनी प्रकृति से जुड़ जाते हैं तो फिर आप स्वाभाविक रूप से समाज से जुड़ जाते हैं, और जब आप समाज से जुड़ जाते हैं तो जब आप समाज को अपना समझने लगते हैं, तो जब तक कोई अनावश्यक, निरर्थक और कठोर बाहरी कारण उसको न तोड़े, तब तक उसके टूटने का कोई कारण नहीं बनता है। तो और ये जो बाहरी कारण आता है वही होता है जो ध्यान से बाहर का होता है। तो ये जो स्थितियां हैं ये न बने, इसकी शर्त यह है कि हम सब ध्यान की ओर सहज स्वाभाविक रूप से प्रवृत्त हों और प्रेरित हों। आपने मुझे यह अवसर दिया, इसके लिए मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद करता हूं। और अगर कुछ गलती त्रुटि भूल हुई हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। वंदना जी, अब आप बात आगे बढ़ाएं, शायद बात। धन्यवाद सर। सर, जैसा कि आपके परिचय में आपने बताया था कि उसमें लिखा था कि गोरखनाथ जी पे भी आपने बहुत काम किए हैं, गोरखनाथ जी जी पे भी आपका काम चल रहा है। तो सर, नाथ संप्रदाय में योग के बारे में क्या बताया गया है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को आप जरा बता सकें तो बहुत अच्छा रहेगा सर। और नाथ जैसा संप्रदाय का, जी, सॉरी आप बात पूरी कर लीजिए। नाथ संप्रदाय का सीधा सीधा प्रभाव हमारे निर्गुण संतों पे भी दिखाई पड़ता है। तो थोड़ा सा सर उसके बारे में अगर आप 2-3 मिनट अगर बता दें तो हम बहुत अच्छा रहेगा। नाथ संप्रदाय में हम गुरु गोरखनाथ को पढ़ेंगे तो हालांकि नाथ संप्रदाय और पर्टिकुलरली गुरु गोरखनाथ की जो अवधारणा है वह एक पूरा स्वतंत्र विषय है, और वह एक अलग स्वतंत्र व्याख्यान की अपेक्षा करता है। लेकिन नटशिल में अगर हम बात करें, बिल्कुल थोड़े में बात करें, तो गुरु गोरखनाथ सहज हो जाने की बात करते हैं। सहज योग गर्भ न करिबा सहज रहिबा ते भणत गोरख राव। गुरु गोरखनाथ का एक पद है कि हबक न बोलिबा थबक न चालिबा धीरे धरिबा पाँव, गर्भ न करिबा सहज रहिबा ते भणत गोरख राव। अभी यह सहज कैसे होना, फिर वही बात आती है कि यह सहज कैसे होना है। तो उसकी जो व्याख्या देते हैं, उसका जो मार्ग देते हैं, वो ये है कि वो कहते हैं दूधाधारी परघर चित, जो फालतू फंड के संकल्प करने की जरूरत नहीं है, फालतू फंड के तप करने की जरूरत नहीं है कि हम ये नहीं खाएंगे, हम वो नहीं पिएंगे, हम ऐसे नहीं रहेंगे, हम यह नहीं लेंगे, हम वह नहीं करेंगे। ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। जो मिले खाओ। गोरखनाथ कहते हैं जो मिले खाओ, जहां रह सको रहो, जैसे जी सको जियो, आसानी से, आराम से, सहजता से अपना जीवन जियो। और वह कैसे आएगा, उसके लिए फिर वही बात होती है, हठ योग। उसका रास्ता वही हठ योग का देता है, जिसमें सबसे ज्यादा जोर जो है वो आसन और प्राणायाम पर। गुरु गोरखनाथ जी ने बहुत सारी मुद्राएं बताई। वो जो मुद्राएं हैं देखने में बहुत सहज, बहुत आसान सी लगती हैं, किसी की समझ में नहीं आता कि कैसे होगा। ये जो एक आपने सुना होगा, बार बार लोग कहते हैं गोरख धंधा। ये गोरख धंधा क्या है? ये गोरख धंधा वास्तव में अब पता नहीं कैसे इसका मतलब इसकी दुर्व्याख्या पता नहीं कैसे हो गई। ये क्या क्या हुआ, मेरे समझ में यह बात नहीं आ पाई है कि कैसे इसका गलत अर्थ लिया जाने लगा। इसका अभिप्राय वास्तव में है, जब भी कोई गुरु गोरखनाथ जी के पास जाता था कि उसे यह कष्ट है, तो उसको वो एक उपाय बता देते थे कि जाओ करो। अब वो जो उपाय करता था वो उसके समझ में नहीं आता था कि इससे क्या होगा, लेकिन वो उसका काम हो जाता, जो उसकी समस्या होती थी उसका समाधान हो जाता। वो अपनी ओर से कुछ नहीं देते थे, कहते थे जाओ ये करो। वही योग की मुद्राएं, योग के उपाय, और वो सफल हो जाता था, वो चीजें ठीक हो जाती। तो लोगों को समझ में नहीं आता। तो गोरख धंधे का जो अभिप्राय है मूल, वो तो बस इतना ही था कि जो आसानी से समझ में न आए, जो इजीली समझ में न आए, हालांकि वह बिल्कुल सहयोग की चीज। तो गुरु गोरखनाथ हठ योग पर ध्यान वो देते हैं, और उनका जो मूलभूत दर्शन है वह न्याय दर्शन के बहुत निकट है। और जब और गहराई में जाते हैं तो हम पाते हैं कि वो तो अद्वैत की ओर ले।
लेकिन ये इतने मतलब नटशेल में इसको इससे ज्यादा कहा नहीं जा सकता, वो थोड़े विस्तार की मांग करता है। इस पर फिर कभी बात करें। जी, वो एक व्याख्यान में नहीं समेटा जा सकता, मुझे लगता है उसके लिए 2-3 व्याख्यान की आवश्यकता पड़ेगी। और अगर कहूँ तो अगर गोरखनाथ जी की जो परंपरा है उसका प्रभाव जो हमारे निर्गुण कवियों पे है, उसके लिए तो एक पूरी व्याख्यान सीरीज चलानी तो पड़ ये सकती प्रभाव की हम लोग बात करें तो बहुत दूर से चला आ रहा है। तो है। मतलब जी गोरखनाथ को सिद्धों में भी गिना जाता है, 84 सिद्धों में, जी जो तिब्बत की परंपरा है। और गोरखनाथ को और बिल्कुल ठीक उसी क्रम जी जी गोरखनाथ को बिल्कुल ठीक उसी क्रम में गिना जाता है सिद्धों के यहाँ भी, जो 84 सिद्धों की परंपरा है, जिस क्रम में उनको नाथ संप्रदाय की परंपरा में गिना। और मैंने उस क्रम पर मैंने अलग से काम किया है, तिब्बत की सिद्ध परंपरा पर और नाथ परंपरा पर, और मैंने ये पाया है कि दोनों परंपराएं ठीक ठीक एक क्रम में चल रही। तो और फिर आगे आप आइए तो कबीर भी कहते हैं नाथ गुरु हों चेला। जी रैदास जी भी गुरु गोरखनाथ को उसी रूप में याद करते हैं। और रैदास के यहाँ जो संत रैदास जी के यहाँ एक उनका एक पद है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पानी जाकी हाँ अंगन पास समानी। जाकी अंगन बास समानी। ये क्या कह रहे हैं कि ईश्वर और भक्त अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। जब गुरु गोरखनाथ जब कह रहे थे मैं नाथ, नाथ नाथ अर्थात मालिक, तब वो क्या कह रहे थे? वो पूरी अवधारणा वही है, हम ब्रह्मास्त्र उपनिषदों से जो चली आ रही, और ये फिर वही ले जाती है जो शंकर अद्वैत का दर्शन, आचार्य शंकराचार्य जो अद्वैत का दर्शन देते हैं कि ईश्वर और मतलब परमेष्टि और व्यष्टि में, ईश्वर में और व्यक्ति में कोई अंतर नहीं है, वो एक ही है। और ये अवधारणा संतों क्या मतलब गुरु गोरखनाथ के पहले से भी और बाद तक भी वह एक ही अवधारणा चली आ रही है। गुरु गोरखनाथ भी उसके उसी प्रवाह के एक अंग है, एक विशिष्ट बिंदु, उससे कहा जाता। जी सर, हमारा आमंत्रण स्वीकार करने के लिए और योग और सामाजिक समरसता पर इतना सुंदर व्याख्यान देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे जो भी दर्शक हैं और मेरा जो संस्थान है मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, उसकी ओर से मैं आपके प्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जोश साहब, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। और सर, इस साप्ताहिक व्याख्यान माला के आयोजन के पीछे हमारे जो संस्थान के निदेशक महोदय हैं डॉक्टर IV बसवा रेड्डी सर, उनकी प्रेरणा और उनकी ऊर्जा जो है वो उसके पीछे उसका ही हाथ है। तो उनके प्रति भी मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और इस कार्यक्रम के आयोजन में अपना सहयोग देने के लिए संस्थान के संचार एवं प्रलेखन अधिकारी और हमारी तकनीकी टीम जो है, और आज के हमारे जो इस व्याख्यान से जो दर्शक जुड़े हुए हैं, उनके प्रति भी हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। अब इस कार्यक्रम की समाप्ति जो है वो शांति पाठ से करेंगे। ओ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपको।